Hello everyone. Today we study about the switching or dynamic characteristic of thyristor. In the last lecture, I told you about the static characteristic of the thyristor, which includes only the reverse bias and the forward bias conduction of the thyristor. So today we will discuss the switching or dynamic characteristic, in which we study the characteristic during the turn on process of the thyristor and during the turn off process of the thyristor. Okay, so let's start. See, this is switching characteristic of thyristor during turn on and turn off. So when thyristor turn on, what is the condition to turn on the thyristor? Thyristor को टर्न ऑन करने की जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है? वो ये है कि जैसा कि हम जानते हैं थायरिस्टर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन इट्स अ 4 लेयर 3 जंक्शन डिवाइस. यहाँ पर ये पी एन की 4 लेयर्स है जो कि J1, J2, J3 ये 3 जंक्शंस फॉर्म कर रही है. तो यूजुअली हम इसको टर्न ऑन करने के लिए क्या करते हैं, हम गेट के ऊपर सिग्नल अप्लाई करते हैं एंड विच इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव सिग्नल. पॉजिटिव gate voltage we apply between the gate and cathode. So what happened in this process when we connect actually the thyristor is connected in forward bias. In forward bias, junction J1 and junction J3, junction J1 and junction J3, these two junctions are in forward bias because this anode and cathode are connected in forward bias. This anode is connected to the positive terminal of the supply and this cathode is connected to the negative terminal of the supply. So thyristor is connected in forward bias. As we connect this thyristor in the forward bias, ये जो जंक्शन J1 और J3 है ये दोनों फॉरवर्ड बायस में चले जाते हैं, बट बीच का जो जंक्शन हमारा J2 है वो रिवर्स बायस में आ जाता है. क्यों आ जाता है? क्योंकि यदि हम यहाँ से देखें तो P को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है. तो यदि इसको फॉरवर्ड बायस मिल रहा है तो ये N को इसके कंपैरिजन में पॉजिटिव सप्लाई N को मिल रही है और ये चूँकि फॉरवर्ड बायस है तो ये P टर्मिनल जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है. तो यदि हम देखें तो ये N और P, दिस PN डायोड, यू कंसिडर इट एज अ PN डायोड. सो ये PN डायोड जो है वो रिवर्स बायस से कनेक्टेड है. तो हम कह सकते हैं J1, दिस PN डायोड इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, this PN diode, this J3 is connected in forward bias, but this J2 is connected in reverse bias. So जंक्शन J1, J2 और J3 ये तीनों जंक्शन जब ब्रेक डाउन होंगे तभी हमारे इस थायरिस्टर की सारी लेयर्स में कंडक्शन स्टार्ट होगा. तो थायरिस्टर हमारा कब स्टार्ट होगा? जब ये तीनों जंक्शंस ब्रेक डाउन हो जाएंगे. ओके, सो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे, थायरिस्टर के क्रॉस हमने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया जिससे कि हमारे जंक्शन J1 और J3 है वो ईजिली ब्रेक डाउन हो जाएंगे. बट जंक्शन J2 विच इज़ ऑलरेडी इन रिवर्स बायस, वी नीड सम एक्स्ट्रा एफर्ट, हमें कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज उस पर अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये J2 जंक्शन वैनिश हो पाएगा. इसके लिए हम गेट और कैथोड के बीच में पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिससे कि ये जंक्शन J2 ब्रेक डाउन हो जाए. सो दिस इज़ द टर्न ऑन प्रोसेस ऑफ द थायरिस्टर. कि थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए हमें इन तीनों जंक्शंस को ब्रेक डाउन करना है. जैसा कि हम डायोड में पढ़ते हैं कि डायोड में भी जब बीच का जंक्शन जो है, जब लेयर जो है ब्रेक डाउन होती है तभी कंडक्शन स्टार्ट होता है. तो यहाँ 3 जंक्शन हैं, ये तीनों जंक्शन जब ब्रेक डाउन होंगे तभी कंडक्शन स्टार्ट होगा. सो दिस इज़ द कंडीशन टू टर्न ऑन द थायरिस्टर. सो this characteristic is divided into 2 parts. Upper part shows the this much part shows the on process of the thyristor and this portion shows the
off process of the thyristor. So this characteristic is for the anode voltage and gate current, and this characteristic is for the anode current. Okay, so let's see the turn on mechanism of thyristor. As I told you earlier, we want to break down this J1, J2 and J3 junction. So when a positive gate signal is applied to a forward bias SCR, a transition of SCR from blocking state, forward blocking state to conducting state is called a turn on mechanism. Okay, this states that what is the turn on mechanism? Turn on mechanism to move the thyristor from forward blocking state to the conducting state. And what is the turn on time? What is the turn on time? So the turn on time for SCR to transverse from blocking state to conducting state is called the turn on time. जो total time उसको on होने में लगता है वही उसका turn on time है. तो turn on time को हम 3 periods में divide कर सकते हैं. The turn on time of thyristor can be divided in three periods. What are these 3 periods? T on is equal to TD plus TR plus TP. What is TD? TD is a delay time. And how we can define the delay time? Let's come to the last slide where it is I have shown you. So delay time is measured from the instant at which gate current reaches 0.9 Ig to the instant at which anode current reaches 0.1 Ia. Here it is shown. This IA TD is shown here. This is TD. This is a delay time period. In this time duration, what is happening in this characteristic? इस कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या हो रहा है आप ये देखिए. इसमें सबसे पहले जो ये IG करंट है वो इस पीरियड में 90% वैल्यू तक पहुंच चुका है. This is the point where the gate current reaches to its 90% value. First thing. Second thing, ये जो हमारा current है, this is the anode current. Anode current reaches to its 10% value. It is a 0.1 Ia, means it is the 10% value of the Ia. So in rise time हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास करंट जो है गेट करंट जो कि हम इस गेट और कैथोड के बीच में अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी फुल वैल्यू का 90% वैल्यू गेन कर लेता है और जो एनोड करंट है वो अपनी फुल वैल्यू का केवल 10% वैल्यू गेन करता है. तो ये कहलाता है डिले टाइम. ओके, नेक्स्ट टाइम पीरियड इज राइज टाइम. सो व्हाट डू यू मीन बाय द राइज टाइम? आई विल अगेन take you back to the last slide. So what is rise time? Rise time, it is shown in this characteristic. This is rise time. Rise time is the time taken by the anode current to rise from its 0.1 Ia to 90% of Ia. And the rise time is also we can define, it is the time required for the forward blocking or off state to fall from 0.9 to 0.1 of its initial value. So how we can assess the rise time? See, in this rise time what is going on? Here you see gate current attempt its 100% value. This is gate current. Gate current ने अपनी 100% value attempt कर ली इस rise time में. दूसरी चीज़ हुई, ये जो हमारा एनोड करंट था वो भी इस 10% वैल्यू से, दिस इज द 10% वैल्यू, इस 10% वैल्यू से कहाँ तक पहुँच गया? उसकी 90% वैल्यू तक पहुँच गया इन द राइज टाइम. ओके, और तीसरी चीज़ जो कि हम यदि एनोड वोल्टेज की टर्म्स में देखें तो इन टर्म्स ऑफ एनोड वोल्टेज भी हमारा उसकी 90% वैल्यू से उसकी 10% वैल्यू तक रिड्यूस हो गया है. सो वी कैन से दैट जो हमारा थायरिस्टर है वो
ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट की तरफ मूव हो रहा है, क्योंकि जब वो ऑन ऑफ स्टेट में था तो उसके क्रॉस वोल्टेज था और करंट ज़ीरो था। अब धीरे धीरे उसके क्रॉस करंट जो है वो डेवलप हो रहा है, इट इज़ गोइंग टू द शॉर्ट सर्किटिंग पाथ और वोल्टेज जो है रिड्यूस हो रहा है, मीन्स वो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट की तरफ मूव हो रहा है। तो इन राइज टाइम हम तीन चीज़ों को देख सकते हैं। पहला तो गेट करंट ने अपनी 100% वैल्यू अटैम्प कर ली, एनोड वोल्टेज 0.90 डिग्री से 10% पे आ गया, मतलब 90% से 10% पे आ गया। तीसरी चीज़ जो एनोड करंट है वो अपनी 10% वैल्यू से 90% वैल्यू पे आ गया। तो इस राइज टाइम में ये चीज़ें ऑकर हुई इन दिस थायरिस्टर। और ये जो हमारा राइज टाइम होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द गेट करंट। इसका मतलब ये है कि यदि हम गेट करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो राइज टाइम जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। जितना ज़्यादा गेट करंट देंगे थायरिस्टर उतनी जल्दी टर्न ऑन पोजीशन पे चला जाएगा, मतलब उतने कम टाइम पीरियड में वो अपनी राइज टाइम में अपनी मैक्सिमम वैल्यू को 90% वैल्यू को गेन कर लेगा। तो जितना ज़्यादा गेट करंट होगा सॉरी उसको टर्न ऑन होने के लिए उतना कम टाइम लगेगा। सो वी कैन से द गेट करंट एंड द राइज टाइम, the magnitude of the gate current and the time duration between this rise time is inversely proportional to each other. So TR can be reduced, TR means rise time can be reduced if high and steep current pulses are applied to the gate. So the main factor determining TR is the nature of the एनोड सर्किट। हमने उसे किस सर्किट में कनेक्ट किया है, हमें कितना रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट चाहिए, यदि स्लो चाहिए तो हम गेट करंट की वैल्यू कम करेंगे, यदि हमें रेट ऑफ राइज ऑफ करंट बहुत ज़्यादा फास्ट चाहिए तो हम गेट करंट की वैल्यू ज़्यादा करेंगे। तो इस तरीके से जो गेट करंट की वैल्यू है वो इस टाइम ड्यूरेशन को डिसाइड करेगी। स्प्रेड टाइम वो टाइम पीरियड है जिसमें कि एनोड करंट अपनी 90% वैल्यू से 100% वैल्यू पर पहुंच जाता है। सो वी कैन डिफाइन एज द टाइम फॉर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज टू फॉल फ्रॉम 0.1 to its initial value to on state voltage drop, and during this time conduction spreads over the entire cross section of the cathode of the SCR. सो स्प्रेड टाइम में क्या होगा, स्प्रेड टाइम में जो कंडक्शन है वो हमारी इन चारों लेयर पे स्प्रेड हो जाएगा। सो लेट्स सी इन द दिस वेवफॉर्म, दिस इज द टीपी विच इज स्प्रेड टाइम, जिस टाइम में कंडक्शन इन चारों लेयर पे स्प्रेड हो चुका है, थायरिस्टर जो है वो ऑन कंडीशन में जा चुका है। तो इस टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें ऑकर हुई, दो हमारे गेट करंट ने तो अपनी वैल्यू गेन कर ही ली थी 100%। जो हमारा एनोड वोल्टेज है, दिस इज द कर्व फॉर एनोड वोल्टेज, एनोड वोल्टेज अपनी 10% वैल्यू से अपनी इनिशियल वैल्यू पे पहुंच गया, 0 पे पहुंच गया, और जो हमारा एनोड करंट था वो अपनी 90% वैल्यू से 100% वैल्यू पे पहुंच गया एंड इट इज़ फ्लोइंग थ्रू द लोड। अब हमें लोड के थ्रू, क्योंकि थायरिस्टर ऑन हो चुका है, थायरिस्टर ऑन हो गया है मतलब हमने स्विच को ऑन कर दिया है, इसलिए लोड करंट ने फ्लो होना शुरू कर दिया है। सो इस टाइम पे थायरिस्टर का डिले टाइम, राइज टाइम और स्प्रेड टाइम ने मिलकर बनाया टोटल टी ऑन टाइम, जो कि थायरिस्टर का टर्न ऑन टाइम कहलाता है। और इस टाइम पे केवल थायरिस्टर के अक्रॉस स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप होता है जो कि उस डिवाइस की रेजिस्टेंस की वजह से होता है, अदरवाइज वो एक क्लोज्ड स्विच की तरह ही वर्क करता है। ओके, अंडरस्टूड? So I have explained you how the thyristor gets turned on. So
इसमें ये 3 टाइम पीरियड हमने डिफाइन करे विथ फर्स्ट इज डिले टाइम। डिले टाइम में VA जो है वो अपनी 90% वैल्यू तक फॉल हो गया। इसमें करंट जो है वो 90% वैल्यू उसने गेन कर ली और एनोड करंट इंक्रीजेस फ्रॉम ए 0.1 टू 90% वैल्यू में। राइज टाइम में इसने कर लिया, राइज हो गया। थर्ड इज स्प्रेड टाइम। स्प्रेड टाइम में it is time taken by the anode current to rise from 90% to the 100% of its value. So it is the time taken by VA to fall from 0.1 to its on state voltage drop. So during this time the conduction is spread over the entire cross section of the cathode, which I earlier told you. Now see the turn off mechanism. अब जब हम थायरिस्टर को टर्न ऑफ कर रहे हैं तब इसमें क्या क्या होगा, वो कैसे टर्न ऑफ कंडीशन में जाएगा। क्योंकि जब थायरिस्टर एक बार टर्न ऑन हो जाता है, हमने इसके ऊपर गेट सिग्नल अप्लाई किया, गेट सिग्नल अप्लाई करने के बाद वो टर्न ऑन कंडीशन में चला गया। अब जब एक बार थायरिस्टर टर्न ऑन हो गया तो गेट अपना कंट्रोल लूज कर देता है। अब यदि आप गेट सिग्नल रिमूव भी कर देंगे तो भी थायरिस्टर ऑन कंडीशन में बना रहेगा। अब हमें थायरिस्टर को जब भी रिक्वायर्ड होगा कि हमें इसे टर्न ऑफ करना है तो हमें क्या करना होगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय टर्न ऑफ मैकेनिज्म? टर्निंग ऑफ एन SCR मीन्स ब्रिंगिंग द SCR फ्रॉम कंडक्टिंग स्टेट टू ब्लॉकिंग स्टेट। अब हमें उसे फिर से ब्लॉकिंग स्टेट में लेकर जाना है, कंडक्टिंग स्टेट में है। तो उसको टर्न ऑफ करने के लिए हमें ये 2 काम करने पड़ेंगे। पहला तो हमें एनोड करंट को उसके होल्डिंग करंट से कम करना पड़ेगा। चूँकि हम जानते हैं लास्ट क्लास में मैंने आपको होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट ये 2 करंट्स बताए थे। तो होल्डिंग करंट वो करंट होता है जिसके कि बिलो यदि आप कर देंगे तो थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा, विच आई अर्लियर टोल्ड यू इट इज कनेक्टेड विद इट्स टर्न ऑफ प्रोसेस। टर्न ऑफ प्रोसेस को हम कम्यूटेशन भी कहते हैं। थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए जो भी मेथड्स हम यूज़ करते हैं इसे कम्यूटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, कम्यूटेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र होना। तो इसमें वो ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में ट्रांसफ़र होता है। तो इसको इस स्टेट में लाने के लिए हमें जो सबसे पहला काम करना है वो है होल्डिंग करंट से रिड्यूस करना एनोड करंट को। दूसरा जो काम है वो है एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स वोल्टेज। चूँकि थायरिस्टर के अक्रॉस तो फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाइड है तो हमें उसे हटाकर उसके अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करना है। तो ये 2 कंडीशंस होती है थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए। ओके, सो अब एनोड करंट को यदि हमें 0 करना है तो ये 2 चीज़ें हमें उस पर अप्लाई करनी होगी। सो अब इसमें हम जानते हैं हमने क्या किया है, हमने J1 जंक्शन को ब्रेक डाउन कर दिया है, ये J2 जंक्शन भी हमारा ब्रेक डाउन है और J3 जंक्शन भी ब्रेक डाउन है। और इस पूरी लेयर पे कंडक्शन हो रहा है। कंडक्शन हो रहा है मतलब यहाँ पर आपके पास चार्ज कैरियर्स एक्सिस में है। हर लेयर पे चार्ज कैरियर्स स्प्रेडेड है। अब हमें इन चार्ज कैरियर्स को रिमूव करना है, तभी ये टर्न ऑफ होगा। ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, जो भी हमारे कैरियर्स जो कि चार्जिंग मोड में जा चुके हैं उन्हें हमें डिस्चार्ज करना होगा, हमें उन्हें रिमूव करना होगा। जैसा कि हमने टर्न ऑन में देखा था, टर्न ऑफ टाइम भी इन 2 टाइम से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज TRR इज रिवर्स रिकवरी टाइम, TGR इज गेट रिकवरी टाइम। सो व्हाट इज रिवर्स रिकवरी टाइम? रिवर्स रिकवरी टाइम में हमारे जितने भी एक्सेसिव चार्ज कैरियर्स है हमारी टॉप और बॉटम लेयर के, उनको हम रिमूव करते हैं। मतलब दिस इज TRR टाइम। क्या किया हमने, सबसे पहले तो ये करंट को रिड्यूस किया। करंट को रिड्यूस कहाँ तक किया, इस पॉइंट तक करंट को हमने रिड्यूस किया और इसके ऊपर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया।
जब हम इसके ऊपर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं या इसको रिड्यूस करते हैं, तो जब हमने करंट को ज़ीरो कर दिया तब भी कुछ ना कुछ चार्ज कैरियर्स हमारी लेयर्स पे बचे होते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है, बट वो नेगेटिव में फ्लो होता है। ओके, और फिर जब हम इसके ऊपर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट विल रीचेस टू द ज़ीरो वैल्यू, उसकी नॉर्मल वैल्यू तक वो पहुंचता है। तो TRR जो है इट इज़ कॉल्ड अ रिवर्स रिकवरी टाइम, और इस रिवर्स रिकवरी टाइम में हम जो भी चारों लेयर्स हैं हमारी, उसके ऊपर जितने भी चार्ज कैरियर्स है उसको हम वहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, सो एक्सेसिव चार्जेस जो J1 और J3 के पास है उनको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और इस रिवर्स रिकवरी टाइम में जो कि T1 से लेकर T3 पॉइंट तक है, इसको मैं लास्ट जो प्रीवियस फर्स्ट नंबर पे जो स्लाइड दिखाई थी उसमें भी आपको शो करती हूँ। सी, इस T1 पॉइंट से लेकर इस T3 पॉइंट तक हमारा जो एक्सेसिव चार्जेस है J1 और J3 के पास वो रिमूव हो चुके हैं। इसको हम कहते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। इस टाइम पर हमारा रिकवरी हो गया है। और इसके बाद आता है आपका TGR। TGR इज व्हाट? TGR गेट रिकवरी टाइम। गेट रिकवरी टाइम से मतलब ये है कि यदि ये T3 पॉइंट पे दिस इज द T3 टाइम पीरियड, और T3 टाइम पर यदि हम थायरिस्टर के अक्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर दे किसी भी तरीके से, यदि मान लो उसको किसी दूसरे सर्किट से उसके क्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज अपेयर हो गया, तो थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा विदाउट एनी गेट सिग्नल, which is we can say it is a false triggering, false on method of the thyristor। थायरिस्टर को इस तरीके से ऑन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको कहते हैं गेट रिकवरी टाइम। कि गेट के थ्रू चूंकि हम टर्न ऑन करते हैं तो बाय एनी अदर मीन थायरिस्टर टर्न ऑन ना हो जाए। क्यों? क्योंकि T1 और T3 टाइम पीरियड के बीच में हमारे J1 और J3 के क्रॉस जितने चार्ज कैरियर्स थे वो तो हमारे स्वीप ऑफ हो गए हैं, बट अब चूंकि J2 जो था लास्ट में यदि हम देखें तो J2 जो है, J2 के पास अभी भी ट्रैप चार्जेस बचे हुए हैं, और उन ट्रैप चार्जेस की वजह से हमारा जो थायरिस्टर है वो विदाउट एनी गेट सिग्नल ऑन पोजीशन में जा सकता है। इसलिए हमें स्टिल रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई करते रहना पड़ेगा, तब जाके थायरिस्टर टर्न ऑफ होगा। और ये हम किसके द्वारा करते हैं? J2 के अक्रॉस जितने भी कैरियर्स है वो केवल और केवल रिकॉम्बिनेशन के थ्रू ही हम रिमूव करते हैं। उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? एक रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, और रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से J2 के पास जितने भी चार्ज कैरियर्स है वो रिकम्बाइन हो रहे हैं होल्स इलेक्ट्रॉन से, और इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो चार्ज कैरियर्स है वो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो टोटल टर्न ऑफ टाइम है विच इज नोन एज अ TQ। TQ इज द टोटल टर्न ऑफ टाइम ऑफ द थायरिस्टर, जिसमें कि थायरिस्टर हमारा टोटली टर्न ऑफ हो रहा है। तो एट द टाइम T3, जैसा यदि मैं पिछले सर्किट से बताऊं तो TRR में J1 और J3 के पास जितने चार्ज कैरियर्स है वो रिमूव हो गए, और जो J2 के पास जितने एक्सेसिव चार्जेस है वो इस TGR पीरियड में रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा टोटल टर्न ऑफ टाइम है वो इन दोनों टाइम पीरियड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। सो इस पॉइंट T4 पर आकर, इस पॉइंट पर यदि हम देखें, इस पॉइंट पर हम देखें T4 पे थायरिस्टर टर्न ऑफ हो गया है, थायरिस्टर टर्न ऑफ हो गया है, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते जा रहे हैं। रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम अप टू दिस T5 टाइम पीरियड। T5
को, जिसको कि हमने TC से डिनोट किया है, T1 से लेकर T5 का जो टाइम पीरियड है ये कहलाता है सर्किट टर्न ऑफ टाइम। सर्किट टर्न ऑफ टाइम मतलब थायरिस्टर जिस सर्किट में कनेक्टेड है उस सर्किट को भी टर्न ऑफ करने के लिए हम कुछ टाइम पीरियड देते हैं जिससे कि टोटल सर्किट टर्न ऑफ हो जाए। मीन्स T4 पे तो हमारा थायरिस्टर टर्न ऑफ हो गया और टाइम पीरियड T5 पे हमारा पूरा सर्किट जिसमें कि थायरिस्टर कनेक्टेड है वो भी टर्न ऑफ हो गया, जो ये इंश्योर करता है कि सर्किट प्रॉपरली टर्न ऑफ हो चुका है। यदि हमारा सर्किट यदि हमारा स्लो टर्न ऑफ टाइम है तो वो कहलाता है हमारे कन्वर्टर ग्रेड SCR। यदि हमें थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम स्लो चाहिए, हम ये चाहते हैं कि वो धीरे से टर्न ऑफ हो, तो वो कहलाते हैं हमारे कन्वर्टर ग्रेड SCR। और ये टाइम पीरियड होता है 50 to 100 माइक्रोसेकेंड्स। सो थायरिस्टर विथ स्लो टर्न ऑफ टाइम विच इज 50 to 100 microsecond are called converter grade SCR। एंड यदि हमें फास्ट टर्न ऑफ टाइम चाहिए लाइक 3 to 50 माइक्रोसेकेंड तक, वो कहलाते हैं हमारी इन्वर्टर ग्रेड SCR। Converter grade SCRs are cheaper and are used where slow turn off is possible. But in phase controlled rectifiers, AC voltage controllers, cycloconverters, etc. But in inverter grade SCR, which is actually it is costlier because here we are providing a very fast turn off time. So it is usually used in inverter circuits, forced commutated converters and chopper circuit. So this is the whole characteristic of the thyristor during turn on and turn off। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब हमें टर्न ऑन करना है थायरिस्टर को तो वी हैव टू ब्रेक डाउन दिस ऑल द 3 जंक्शंस J1, J2 एंड J3। तो जब हम थायरिस्टर को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दें तो J1, J3 फॉरवर्ड बायस में होते हैं और J2 रिवर्स बायस में होता है। तो हमारा मेन टास्क होता है इस J2 को ब्रेक डाउन करना। और हमने टर्न ऑन टाइम को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, TD, TR और TP। और इसी तरीके से जब हमें टर्न ऑफ करना है तो हम जो चार्ज कैरियर्स हैं इन लेयर्स पे उन चार्ज कैरियर्स को रिमूव करेंगे बाय reducing the anode current up to the holding level and applying the reverse voltage. Okay, thank you.